हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है एरियल डिफरेंशिएशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक बाय द नेम ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन. So before proceeding on topic, we must have a basic idea regarding what areal differentiation. So before proceeding with our presentation, I'll give you brief overview that basic flow chart, right? Means I'm going to provide you the brief overview of entire lecture. Means when we're talking about areal differentiation, the basic question comes in our mind, the word itself. Check it. The word itself means who provided this concept or who provided this idea. This is provided by Hartshorne. I'm just using the short form. Everything is mentioned in our presentation. So the word areal differentiation is provided by Hartshorne. The number one point is clear. Second is, what is the meaning of areal differentiation? This is the major point or the critical point of this entire lecture. Areal differentiation is what? It's a areal variation. Areal differentiation is what? Areal variation. Now, areal variation of what? Geographical phenomena. I'm repeating. Areal differentiation meaning is areal variation, and this variation in terms of geographical phenomena. Point number one. Second, this phenomena can be similar and this can be dissimilar. Clear? The similarity and dissimilarity in sense of it can be physical, clear, or it can be cultural aspect. So both of them are going to be observed where? Both of them are going to be observed on the surface of earth. On the surface of earth. So here what we have observed, the basic idea regarding the lecture. The name of lecture is areal differentiation. So what we have gone through in last 2 minutes, what is the meaning of word areal differentiation? Areal differentiation is going to provide you information regarding what? The difference between two areas. उसमें कौन सी जोग्राफिकल लोकेशन है. एक एग्जांपल देखते हैं, बड़ी इजीली ये क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक लोकेशन है, ठीक है. लेट्स से मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ इंडिया का, क्लियर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन. लेट्स से दिस इज द लोकेशन ऑफ दिल्ली, which is our capital. Now let's observe on same latitude, clear. This is what the location by the name of Delhi, and on the same latitude let's say we have a अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है. अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे किसको? दिल्ली को अरुणाचल प्रदेश से, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ टोपोग्राफी. क्लियर? सो हमारी फाइंडिंग क्या है? दिल्ली के अंदर लेट्स से हम बात करते हैं मई मंथ की या फिर जून मंथ की बात कर लेते हैं, कोई भी आप मंथ यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. लेट्स से इन द मंथ ऑफ जून, if we are going to compare Delhi with Arunachal Pradesh in terms of temperature, let's say Delhi's temperature is 40 degrees Celsius. On the other hand, Arunachal Pradesh temperature is what? Somewhere around 20 degrees Celsius. Here what we are observing, the geographical phenomena, it's different on different location. So in this entire concept, we are going to have a detailed understanding how this impact or how this particular change is going to be contribute in what? In our geographical understanding. Clear? So this is what a brief example. For the sake of understanding, I'm repeating the example. Here what we have taken two location. The first is Delhi and the second is Arunachal Pradesh. If you are going to check on your atlas, so ये दोनों लोकेशन मोर और लेस सेम लैटिट्यूड पे आती है. So अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? अगर जून के मंथ में टेम्परेचर दिल्ली का कितना है? 40. So on the same time Arunachal Pradesh will have the temperature of 20 degree Celsius. So what is the finding? सेम लैटिट्यूड पे होने के बावजूद जोग्राफिकल फिनोमिना के अकॉर्डिंग इनमें क्या है? वेरिएशन है. करेक्ट. सो लेट्स हैव अ ब्रीफ आइडिया regarding our present lectures overview, which points we are going to cover. So introduction is already done. Now we are going to understand how this concept evolved over the period of time. Then thinker's perspective, central idea, criticism and application. We are going to proceed step by step. So what is the introduction? Introduction says that word areal differentiation. Word areal differentiation was provided by Hartshorne. In which book? The Nature of Geography, 1939. Clear? So this is what a
factual trivia which can be useful in your exam. So it will enhance your answer writing. Correct? So here what we have done, I have clubbed both Hindi and English side by side. अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो अगर देख रहा है तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता है. So for the sake of demo purpose, I'm going to keep my lecture 90% English and 10% Hindi, and rest of can be altered as per the requirement. So here what we have observed, the basic introduction. Then our main purpose is here to identify unique character. Unique character, for example, here we are taking Delhi and this is Arunachal Pradesh. The unique character of Delhi, it's situated nearby the edge of the Aravalli hill, and this is what it's situated. Let's say this is Arunachal Pradesh, it's what the eastern part of Himalaya. ये क्या है इन दोनों की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक. क्लियर? नाउ here what we are observing, ये सारी चीजें हम फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में देख चुके हैं कि ज्योग्राफिकल फिनोमिना के टर्म में एरियल वेरिएशन ऑब्जर्व होता है, एंड दिस कैन बी फिजिकल, दिस कैन बी कल्चरल, और ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे होती हैं? अर्थ की सरफेस पे. नाउ we have a particular map. This map is going to be help you in the understanding. Let's say this area is referred as a green color. If I'm going to differentiate in terms of agriculture, Rajasthan, Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, in terms of wheat production, these 4 to 5 states having a domination state or dominating area. So what we can do here, on the basis of agricultural production, we can divide entire India into different zone and into different region. Correct? So now let's proceed with the next part, that is ideography and nomadic approach. Now what do you mean by ideography and nomadic approach? This approach is provided by whom? By the Kant. Let's understand the very first ideography. Ideography is nothing, it's unique nature or the scientific fact and process of a particular thing. ठीक है, कहने का मतलब है इडियोग्राफी के अंदर यूनिक प्रोसेस के ऊपर फोकस होता है जो कि साइंटिफिक हो. ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड नोमैटिक किसके ऊपर बात करता है? द जर्नल लॉ. ठीक है, नोमैटिक इज टॉकिंग अबाउट जर्नल लॉ. अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे यूनिक नेचर क्या है? माउंटेन. लेट्स से ये हमारी टोपोग्राफी है. ठीक है, and this topography is having what? Unique nature of mountain. Now as per the nomadic, every entity or every area, mountainous area, किसको हम माउंटेनियस एरिया बोलेंगे? इफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज हैविंग मोर देन 600 मीटर. बस यहाँ पे कुछ बेसिक और डेफिनेशन है कि अगर जो टॉप फ्लैट है दैट विल बी रेफर्ड एज ए प्लेट्यू, सो एंड सो फोर्थ. सो हियर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, एनी object or any landform whose height is more than 600 meter, which this can be designated as a mountain. On the other hand, here what we can say, this is what Himalayan mountain, this is what Pamir Knot, this is what Kulnun Shah, it's Hindu Kush, it's Suleiman range. So what we are observing, all these are mountain, however names are different. Clear? So this is what ideography, and the upper one is what? Nomadic approach. So this is the brief idea regarding both of them. Clear? Next, okay, if speed is higher, let me confirm. Till now we have just gone through the basic things, introduction. After the introduction we have gone through with the unique character, then we have gone through with the aerial variation, and then we have taken the example of map, how we can understand, and the recent topic is ideography and nomadic approach. Now it's a very important part, that aerial differentiation is talking about both within and among the region. What do you mean by within and among the region? Let's say this is again our India's map, it's Punjab and it's Maharashtra. Okay, now we are going to focus Fazilka and Muktsar. These are the two districts of the Punjab. What is the production of wheat in Fazilka and what is the production of wheat in Muktsar, and what is the level of rainfall, what is the level of rainfall in Muktsar and Fazilka? So here what we are observing,
पंजाब के अंदर दो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, उन दो डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट विद इन द रीजन वी आर गोइंग टू चेक द डिफरेंस. ठीक है, अमंग का मतलब है ये हो गया पंजाब और ये हो गया महाराष्ट्र. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर व्हीट प्रोडक्शन और टेम्परेचर और रेनफॉल और टोपोग्राफी बिटवीन पंजाब एंड महाराष्ट्र. सो दिस इज व्हाट इंटर रिलेशनशिप इंक्लूड डिफरेंट एंड विद इन. क्लियर? मीन्स पंजाब के और महाराष्ट्र के बीच में भी डिफरेंस. नेक्स्ट, पंजाब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में डिफरेंस. सो दिस इज व्हाट the basic idea regarding areal differentiation. Now, areal differentiation is what chorology. Now, chorology is a Greek word. अब इस वर्ड का मतलब क्या है? ग्रीक इस वर्ड का मतलब है द साइंस ऑफ प्लेस. मीनिंग, इसका मीनिंग है जितने भी यहाँ पे प्लेस है और जो प्लेस एंड रीजन उनकी स्टडी किसके अंडर आती है? कोरोलॉजी और कोरोग्राफी. यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है दिमाग में. जैसे जब हम ज्योग्राफिकल थॉट स्टार्ट करते हैं, एक होता है क्रोनोलॉजी, ठीक है, और एक होता है कोरोलॉजी. सो वेरी बेसिक क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ज्योग्राफी इज व्हाट? क्रोनोलॉजिकल सब्जेक्ट और कोरोलॉजिकल सब्जेक्ट. क्लियर? अ वेरी ब्रीफ क्वेश्चन कैन बी डेवलप्ड हियर. नाउ वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड ideography means unique and particular process or the factual part. ठीक है, सो यहां से अब हमारा स्टार्ट होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. यहां पे हमने एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट के सेंस में क्या देखा है? एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑल दीज वर्ड्स आर इटसेल्फ अ टॉपिक. ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा इन सभी वर्ड्स के रिगार्डिंग एंड देन आई विल प्रोसीड इन ब्रीफ मैनर. सो द वेरी फर्स्ट इज क्लासिकल ज्योग्राफी. देखो दो वर्ड आते हैं ज्योग्राफी के अंदर, एक आता है क्लासिकल ज्योग्राफी एंड द नेक्स्ट इज क्लासिकल पीरियड. ठीक है, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स के पास. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल ज्योग्राफी एंड पीरियड? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिकल ज्योग्राफी, इट मींस वी आर रेफरिंग द टाइम पीरियड ऑफ स्ट्रैबो एंड टॉलेमी. ठीक है, आई एम रिपीटिंग, क्लासिकल ज्योग्राफी के अंदर हम कौन से टाइम पीरियड को रेफर कर रहे हैं? जिस टाइम स्ट्रैबो है, टॉलेमी है, ठीक है, हम उस टाइम पीरियड को रेफर कर रहे हैं. बट द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल पीरियड. जैसे हिस्ट्री में हमने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. द टाइम पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री इज इक्विवेलेंट टू द क्लासिकल पीरियड ऑफ ज्योग्राफी. सो व्हाट इज द मेन पॉइंट हियर कि जो क्लासिकल पीरियड है, दिस क्लासिकल पीरियड इज स्टार्ट्स विद वेरेनियस, क्लियर, which is developed by Kant and further contribution is done by Humboldt and Ritter. So classical period में Varenius, Kant, Humboldt इनकी बात होती है. क्लासिकल ज्योग्राफी के अंदर बात होती है स्ट्रैबो, टॉलेमी के बारे में. ठीक है, now next is environmental determinism. What do you mean by the word determinism? Determinism means who is supreme? Nature is supreme. कौन सुप्रीम है? नेचर सुप्रीम है. नेचर विल गाइड द ह्यूमन विल कि वो क्या क्या कर सकता है. सो आई एम रिपीटिंग, डिटर्मिनिज्म मींस हु इज सुप्रीम? नेचर इज सुप्रीम. एंड हु इज गोइंग टू गाइड द ह्यूमन? नेचर विल गाइड. सो कहने का मतलब है कि ह्यूमन कितना ग्रो करेगा, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? सराउंडिंग एरिया पे डिपेंड करता है. और हमारे आसपास जो जो चीजें अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट बोलते हैं. सो दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड एज ए एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. सो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी कि जो हमारे आसपास जो चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल वेरिएशन. स्पेशल वेरिएशन का मतलब, लेट्स से हम दिल्ली, अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ, एक एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे अभी एट प्रेजेंट जो लोकेशन है सीकर, सीकर के अंदर क्या है कि ये अरावली रेंज है. ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? लस्ट ग्रीन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट तो नहीं बोल सकते, वेजिटेशन अच्छी है. इससे हार्डली कितना 20 किलोमीटर वेस्ट साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? डेजर्टिक एरिया, यानी कि हम थार एरिया की बात कर रहे हैं. एक्चुअल में थार डेजर्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन थार डेजर्ट का एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ पे हमको दिखता है. सो मेन पॉइंट क्या है इसको डिस्कस करने का कि सेम सीकर सेम डिस्ट्रिक्ट है, इसी सेम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह माउंटेनियस और दूसरी जगह डेजर्टिक सॉइल आपको मिल रही है. तो ये क्या हो गया? जहां पर डेजर्टिक सॉइल है तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग ही होगी. नेक्स्ट आता है रीजनल ज्योग्राफी. जैसे हम रीजनल ज्योग्राफी की बात करते हैं,
दो वर्ड हमारे दिमाग में आते हैं, एक है हम्बोल्ट और दूसरा है कार्ल रिटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट ने तो सेंटर स्टेज क्या लिया है, कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स की बात हुई है। तो इन्होंने जो डेवलप किया है वो है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। वैसे तो स्ट्रैबो को बोला जाता है कि ही इज द फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, लेकिन जो फर्दर जो डिटेल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो किसने परफॉर्म किया, कार्ल रिटर ने परफॉर्म किया। करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। अच्छा, जब हम रीजनल ज्योग्राफी की बात करते हैं, ये यूनिकनेस की बात करता है, हर एक एरिया और हर एक टेरिटरी की अपने आप में एक यूनिक फीचर होता है या एंटिटी रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। देखो ये अगेन एक हमारा नया कॉन्सेप्ट आ गया है, ये एक इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बड़े आराम से हो सकता है। जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है, इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हार्टसोन एंड सैफरसन डिबेट। अब ये जो हार्टसोन और सैफरसन डिबेट है, इसकी वजह से एक ज्योग्राफी के अंदर क्या है, क्राइसिस पीरियड। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे ये क्राइसिस पीरियड आता है, इससे पहले एक स्टेटमेंट आती है, ज्योग्राफी इज व्हाट ज्योग्राफर मेड। आई एम रिपीटिंग, जो क्राइसिस पीरियड है हार्टसोन और सैफरसन की डिबेट के बाद आया है, लेकिन इसी टाइम पे एक स्टेटमेंट आई थी कि ज्योग्राफी इज व्हाट ज्योग्राफर मेड। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो क्राइसिस पीरियड है, इसके बाद क्या हुआ है, ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट टाइम कंप्यूटर, अगर प्रिसाइजली बात करें, सुपर कंप्यूटर्स की यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हुई है। सुपर कंप्यूटर के यूटिलाइजेशन की बाद जो ज्योग्राफी के अंदर डेटा प्रोड्यूस हो रहा था, उससे हम क्या डेवलप करना स्टार्ट कर पाए, जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट्स हम बना पाए। तो ये जो जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है आगे जाके बहुत हेल्पफुल रही किस चीज के अंदर, जैसे वेबर का इंडस्ट्रियल ट्रायंगल मॉडल है, सो एंड सो फोर्थ, और भी बहुत से हमने चीजें डेवलप की थी। करेक्ट। सो इसके बाद हमारे जो पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक्स है, इसके अंदर हमने क्या चीजें देखी है कि जो पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक है, यहाँ पे 1970s तक आते आते जो ओवर एम्फोसिस था किसके ऊपर, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पे, वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखा है। ठीक है। सो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था, जिसके अंदर हमने क्या देखा है कि किस तरीके से एरियल डिफरेंशिएशन इवॉल्व होता गया है। सबसे पहले हमने देखा है कि क्लासिकल ज्योग्राफी और क्लासिकल पीरियड, इसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझा। नेक्स्ट हमने एरियल ज्योग्राफी। After the aerial geography, we proceed on the topic quantitative revolution. This was brought during 1950s and 60s, and this was a result of geographical the crisis period in geography. के लिए इससे मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट आता है, पैराडाइम शिफ्ट इन ज्योग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है थिंकर प्रोस्पेक्टिव। थिंकर प्रोस्पेक्टिव मतलब द कॉन्सेप्ट और द आइडिया एरियल डिफरेंशिएशन जो आज के टाइम में हमारे सामने दिख रहा है, वो एक्चुअली में स्टार्ट कहां से हुआ है। दिस वाज स्टार्टेड बाय हिकेटियस। क्लियर। दिस वाज द पर्सन हु प्रोवाइडेड और ही इनिशिएटेड। ठीक है, या फिर ये पहले पर्सन थे जिन्होंने दो डिफरेंट लोकेशन के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की थी या स्टार्ट किया था। देन इट वाज लेड बाय स्ट्रैबो, एंड स्ट्रैबो ने कौन से पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, कोरोलॉजिकल्स। ठीक है, यानी जो भी हम कोरोलॉजी की बात करते हैं, किसने स्टार्ट किया है, स्ट्रैबो ने स्टार्ट किया है। सो स्ट्रैबो को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे और भी हमारे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। सबसे नेक्स्ट आता है अल्फ्रेड हेटर। सो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा है उसको एक बार आप गो थ्रू कर लो, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड। या किसी का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। ओके, मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, आपने वीडियो पॉज की है और जो भी डाउट थे आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम प्रोसीड करते हैं। जो हमारे थर्ड पर्सनैलिटी है या फिर जो जोग्राफर है जिन्होंने यहाँ पे फोकस किया है, इनका मेन फोकस है कि जो भी एरिया होता है उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उस कैरेक्टर को पूरे डिस्क्रिप्टिव मैनर के अंदर डिस्कस करना। देन यहाँ पे कुछ अमेरिकन जोग्राफर्स आते हैं, अमेरिकन जोग्राफर जैसे पॉवेल। ठीक है, पॉवेल ने क्या किया, पूरी की पूरी अमेरिका को, पॉवेल ने ये वैसे कॉन्सेप्ट दिया था 1896 के अंदर, एंड पॉवेल ने बेसिकली क्या किया, पूरे के पूरे यूएसए को डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजन के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, सेम नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है, जो हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो है हार्टसोन। ठीक है, हार्टसोन ने जो वर्ड है एरियल डिफरेंशिएशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। एंड हाँ, अमेरिकन के अंदर जो
कंट्रीब्यूटर है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे WLZ 1914 के अंदर ये प्रोवाइड किया था कि जो अर्थ की सरफेस है इसके अंदर जो फिजिकल कंडीशन है होमोजीनियस नहीं होती है। होमोजीनियस नहीं होती है का मतलब ये है, जैसे हमने यहाँ पे दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल लिया है, ठीक है, ऑल्दो सेम लैटिट्यूड पे, लेकिन इनके पास ना तो टोपोग्राफी सेम है ना ही फिजिकल एट्रीब्यूट सेम है, ठीक है। ओके, मूव करते हैं हडसन एंड सैफरसन। सैफरसन को तो बाद में देखेंगे, अभी हडसन के बारे में देख लेते हैं। हडसन ने बेसिकली जो रीजनल लेवल पे कैसे हमें स्टडी करनी चाहिए, ठीक है, लैंडस्केप में क्या क्या डिफरेंस हम नोट करेंगे, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है किसने, हडसन ने प्रोवाइड किया है। जैसे यहाँ पे हम फिजिकल और जो ह्यूमन फिनोमिना है वो एक दूसरे को कैसे इंपैक्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास दो लोकेशन है, एक है गैंजेटिक प्लेन, ठीक है, और एक है डेजर्टिक एरिया। सो कौन से एरिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? मैं एक बार रिपीट करता हूं, एक है हमारे पास गैंजेटिक प्लेन और एक है डेजर्टिक एरिया। डेजर्टिक एरिया यहाँ पे थार ले सकते हो, कोई भी आप एग्जांपल ले लो। तो इन दोनों में से पॉपुलेशन की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी गैंजेटिक प्लेन के अंदर। क्यों? इन दोनों के अंदर एरिया वाइज डिफरेंस है, और ये जो एरिया वाइज डिफरेंस है किसकी पॉपुलेशन के बिहाफ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो? ह्यूमन की पॉपुलेशन। तो ये आइडियाज किसके थ्रू प्रोवाइड किए गए थे? ये आइडिया प्रोवाइड किए गए हार्टसोन, ये आइडिया प्रोवाइड किए हार्टसोन के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल आइडिया। तीन सेंट्रल आइडिया यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। सबसे पहला है स्पेशियल वेरिएशन। अब देखो, स्पेशल वेरिएशन का मतलब है यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात की है दो डिफरेंट लोकेशन के बीच में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, स्पेशल पैटर्न की, स्पेशल पैटर्न बेसिकली यहाँ पे बात करता है क्लाइमेट, ठीक है, यानी दो लोकेशन के बीच में क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफिकल स्केल। ज्योग्राफिकल स्केल का मतलब यहाँ पे आप लोकल लेवल पे कंपेयर कर रहे हो या फिर लोकल को ग्लोबल लेवल पे कंपेयर कर रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा ज्योग्राफिकल स्केल। सो इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है एरियल डिफरेंशिएशन का? तीन चीजें। सबसे पहला यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना है दो डिफरेंट लोकेशन का, ठीक है, और जब हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशिएशन ज्योग्राफिकल फिनोमिना के बिहाफ पे करेंगे। नेक्स्ट आता है पैटर्न। पैटर्न के जो यहाँ पे पैटर्न का मेन पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मींस अगर हम यहाँ पे लेट से मॉनसून की बात करते हैं, ठीक है, ये है दिल्ली और ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर रेनफॉल 200 प्लस सेंटीमीटर आती है और दिल्ली में रेनफॉल आती है 50 टू 70 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे एयर मूव कर रही है दिल्ली के साइड में, ऑब्जर्वेशन ये बता रही है कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब ये क्यों होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारी क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं कि जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, रेनफॉल का, वो चेंज होता जाता है जैसे जैसे आप कोस्टल एरिया से इंटीरियर पार्ट की तरफ मूव करते हो। एंड नेक्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफिकल स्केल। ज्योग्राफिकल स्केल किस चीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? एक मिनट, ठीक है। ज्योग्राफिकल स्केल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है कि लोकल को कंपेयर कर रहे हैं हम लोकल लेवल पे या फिर लोकल को कंपेयर कर रहे हैं हम ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट यहाँ पे अब जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है या फिर जो हम आगे फर्दर डेवलपमेंट करने वाले हैं या फिर हमने जो अभी तक डेवलपमेंट की है, इसका सोर्स क्या है? सबसे पहला है ह्यूमैनिज्म सोर्स है, ठीक है। सबसे पहला सोर्स क्या है? ह्यूमैनिज्म इसका सोर्स है। अब ह्यूमैनिज्म बेसिकली मतलब क्या है? ह्यूमनिज्म मीन्स यहां पे ह्यूमन कौन है सेंटर स्टेज में, मीन्स कोई भी पर्टिकुलर टोपोग्राफी या कोई भी पर्टिकुलर फिजियोग्राफी किस तरीके से ह्यूमन के एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर रही है और ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है किस तरीके से वहां की पर्टिकुलर लोकेशन को चेंज कर रहा है या उसको इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो एरिया, लेट्स से ये एक एरिया है, ठीक है, एंड ये एरिया माउंटेनियस फ्लैट एक्सेट्रा इस तरीके से एक पूरा एरिया डेवलप है। अब यहाँ पे ये एरिया किस तरीके से ह्यूमन के एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। सो ये अप्रोच कहां से आती है? ह्यूमनिज्म से। क्योंकि लेट्स से कोई पर्सन लेट्स से पॉइंट 1 पे है, ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया।
कोई पर्सन नंबर 2 पे है और कोई पर्सन नंबर 3 पे है। यहाँ पे लेट्स से जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, या ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 को यहाँ पे क्या मिल रहा है, ओशन। तो अब यहाँ पे आइडिया कैसे डेवलप होगा, आइडिया जो ह्यूमन बिहेवियर है वो ऐसा डेवलप होगा, उसको ओपन सी दिख रहा है, ओपन सी की वजह से उसको क्या ऑब्जर्वेशन होगी या उसका कैसा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, एंडलेस थॉट प्रोसेस। एक साइंटिफिक सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग क्या पता चला है कि जो लोग ओपन सी के पास रहते हैं या खुले एरिया के अंदर जा रहे थे, उनका जो होराइजन है या जो उनका थॉट प्रोसेस है बहुत ज्यादा इलेबोरेट रहता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे माउंटेनियस रीजन की बात करें, माउंटेनियस रीजन में रिसोर्स स्केर्सिटी है, रिसोर्स स्केर्सिटी की वजह से ये कैसे मिलेंगे आपको, हार्ड वर्किंग नेचर के मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट टोपोग्राफी ने ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमनिज्म, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच इज नथिंग, जो सोसाइटी में रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे हैं, अनइवन है, ठीक है। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को दूर करना या फिर उसको मैनेज करना या उसकी वजह से जो जो चीजें डेवलप होती हैं सोसाइटी में, दैट इज व्हाट मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है। एंड नंबर 3 अप्रोच ज्यादा कुछ नहीं है, इन दोनों का मिक्सचर है, क्लियर। सो अब हमने यहाँ पे क्या देखा है कि सोर्स ऑफ नॉलेज या जो इंटेलेक्चुअल है कहां से आती है, इंस्पिरेशन कहां से आता है, सबसे पहला हो गया हमारा ह्यूमनिज्म, सेकंड है हमारा मार्क्सिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यह भी हमारा लास्ट पोर्शन है, क्रिटिसिज्म। इसमें एज सच कोई भी हमारे पास डिस्कस करने के लिए इतना नहीं है, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला यहाँ पे जब हार्टसोन के एरियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, जो हार्टसोन का एरियल डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, वो ये नहीं बताता कि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट या इंटीग्रेट कैसे हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आप अपने लेवल पे एक बार देख लेना, इसमें ऐसा तो मुझे कुछ समझाने वाला लग नहीं रहा है। इनकेस अगर इनमें से कोई भी पॉइंट या कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो कोई है ऐसा इसके अंदर, ठीक है, इसमें ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है क्रिटिसिज्म में, फिर भी अगर हम ओवरव्यू देखते हैं तो कोई भी जो एरिया है, ठीक है, एरिया 1 और एरिया 2, इनकी बाउंड्री नीटली डिवाइडेड नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है, क्लैशेस होते हैं, ठीक है। दूसरा लेट से यहाँ पे हमने जो ए है और ये बी, दो रीजन बोल दिए। अब इस एरिया को हमने डिवाइड कर दिया कि ये रिच, यानी इनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, और इसकी हमने क्या बोल दी, पर कैपिटा इनकम कम है, तो इसको हमने फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस पुअर बोल दिया। अब इसकी वजह से लोकल लेवल पे क्या सेंटिमेंट होते हैं, क्लैशेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जैसे रिसेंट एग्जांपल कोई है नहीं, अभी तो मेरे को कोई रिसेंट एग्जांपल याद नहीं आ रहा। आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो बिहार और दिल्ली, इन दोनों लोकेशन में से सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। तो अब जो दिल्ली है वो कैसा रीजन डेवलप होता गया है, वो अपॉर्चुनिस्टिक एरिया में डेवलप हुआ है, और जो बिहार है रेगुलरली क्या होती है, माइग्रेशन होती है, तो जिसकी वजह से जो बिहार के अंदर जो वर्क फोर्स है कम हुई है और दिल्ली में जरूरत से ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, बर्डन देखने को मिल रहा है एक स्पेसिफिक टेरिटरी या एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, बहुत सिंपल सिंपल है कि अगर आपको ये पता है कि किस जगह पे, जैसे हमने यहाँ पे दिल्ली और बिहार का एग्जांपल लिया है, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा है और वर्क फोर्स ज्यादा है, कम कहाँ पे, बिहार में, तो यहाँ से हम कैसे उसको शिफ्ट कर सकते हैं बिहार में। तो इससे हमें रिसोर्स मैनेजमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, अच्छा रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे मिलेगा, हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पे, क्योंकि देखो जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन है, वो भी रिसोर्स बोला जाता है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियों में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स या फिर एचआर डिपार्टमेंट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको बिहार को अगर ग्रो करवाना है, तो ये जो रिसोर्स है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा बिहार के अंदर, तभी तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर आप चाहते हो दिल्ली सस्टेनेबली ग्रो करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पॉपुलेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इससे रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, डिजास्टर भी मैनेज हो जाएगा सिर्फ एक छोटे से स्टेप से, ठीक है। कैसे, लेट से अर्थक्वेक आता है, ठीक है, कहां पे, जैसलमेर में, और दूसरा दिल्ली में, तो सबसे ज्यादा चांसेस कहां है डेथ होने की, जैसलमेर की बजाय दिल्ली में डेथ होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस है। अब यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन या इवेल्युएशन अगर हम देखें, ये कुछ हमारे
की पॉइंट निकल के आते हैं। जैसे ये हमें हेल्प करता है किस चीज में, कि किस एरिया को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। सेकंड पार्ट अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें, जो एरियल डिफरेंशिएशन है वो कैसा है, रैशनल और साइंटिफिक डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक आइडिया है, जैसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करना, जीआईएस, सो एंड सो फोर्थ। सो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट थे एंड ये आप एक बार रीड आउट कर लेना अपने लेवल पे, क्योंकि जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है ये उसी के रिगार्डिंग है। तो एक बार सम अप करने से पहले ओवरव्यू देख लेते हैं हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और क्या क्या चीजें हमने कवर की है। सो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले हमने एक फ्लो चार्ट स्टार्ट किया था, किसने दिया है, जैसे हार्टशोन। मीनिंग क्या है, मीनिंग देखा हमने कि ज्योग्राफिकल फिनोमिना के अंदर वेरिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखा दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा है, इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन के बाद हमने इस मैप की हेल्प से समझने की कोशिश की किस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया को हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा है इडियोग्राफिक अप्रोच और नोमेटिक अप्रोच। नोमेटिक अप्रोच में हमने क्या देखा है कि ये जर्नल लॉ प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, इसके बारे में ऑब्जर्व किया हमने। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट। इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर हमने 5 डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स देखे, जैसे क्लासिकल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल, रीजनल, क्वांटिटेटिव एंड पोस्ट मॉडर्न। नेक्स्ट यहाँ पे हमने थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से क्या देखा है कि किस तरीके से जो आपके एरियल डिफरेंशिएशन की जर्नी है वो स्टार्ट होती है, कैटियस से स्टार्ट होके ये हमने लास्ट जो हार्टशोन है वहां पे हमने कंक्लूड की है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया क्या था, स्पेशल वेरिएशन, स्पेशल पैटर्न एंड ज्योग्राफिकल स्केल। नेक्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर जो हमारे पास ये जो इंटेलिजेंस है ये कहाँ से है, ये ह्यूमैनिज्म हो गया, मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, यहाँ से ये चीजें कवर की। और क्रिटिसिज्म में हमने एक ब्रीफ आइडिया दिया कि किस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्लासेस होते हैं और जो अलग अलग स्टेट है उनको अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाउंड्रीज जो है स्पेसिफिक डिमार्केटेड नहीं होती। एप्लीकेशन क्या है, इसके लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन मिलते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट से लेकर के डिजास्टर मैनेजमेंट तक। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन एंड कंक्लूजन। यहाँ पे इवेल्युएट हम क्या कर पा रहे हैं या फिर कंक्लूड क्या कर पा रहे हैं कि जो एरियल डिफरेंशिएशन है प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करता है साइंटिफिकली एंड रैशनली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस की हैं। कोई भी डाउट हो अगर आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी अपडेट करेंगे आपको।